of first order linear differential equations. So in this tutorial, we are going to cover basically a few questions about system of first order differential equations. So हम उसको थोड़ा सा introduction देख लेते हैं, and then in the upcoming tutorials we will try to solve the system of differential equations, right? So we have covered this in length in our class, but let's see what is the brief summary of system of differential equations, right? So what we say, system of first order linear and linear ordinary differential equations. So what it means? So if you see, systems mean we will have more than one equation, and these equations will be coupled, and we will see in a minute what it means. और उसमें जो order होगा, which means the highest power of the derivative, it will be 1, or and these equations will be linear, और ये ordinary होंगी, right? Not partial differential equations. So let's see what we mean by it. So for example, मैं अभी यहाँ पे लिखते हैं एक equation, जैसे मैं लिखूँ d by dt, or let's say x1 is equal to 2 times x1 plus 5 times x2. So this is first order, right? Differential equation जिसमें जिसमें ये इसका जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो फर्स्ट है, राइट? और ये लीनियर इन एक्स है, एक्स में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई कैन शो यू टी टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? सो इंडिपेंडेंट, और अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डिनरी, बिकॉज इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सिस्टम these equations will be more than one. अभी तो मैंने एक लिखी है, but these will be more than one equation. So let me write the second equation as well. So अब मैं लिखूंगा d by dt, और लिखते हैं let's say x2 is equal to 3 times, for example, x1, 3 times x1 plus maybe 2 times x2. So let me write x2 like this. So if you see कि x1 जो है, इसमें x1 basically ये जो right side है, let me rewrite it again. So ये जो मैंने right side लिखी हुई है, I can say that this is function of both x1 and x2. And similarly, this is also function of, let's call maybe g, both x1 and x2. So पहली इक्वेशन x1 पे भी डिपेंड कर रही है, x2 पे भी, दूसरी इक्वेशन x2 का जो डेरिवेटिव है x1 और x2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है. सो दीज आर कपल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, राइट? तो इस तरह की इक्वेशंस को हम देखेंगे, हाउ टू सॉल्व सच इक्वेशंस, राइट? और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग is, before we start solving our question, is basically following. So वो ये है कि every, and this is important, every higher order differential equation ODE, हम जितनी भी हायर ऑर्डर ODE हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट, हायर ऑर्डर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उनको हम
कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली किसमें, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कर सकते हैं। एंड व्हाई वी वांट टू डू दैट आई विल आंसर दैट लेटर, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन रिमेन व्हाई वी डू दिस, राइट? एंड आई विल आंसर दिस after a minute or so. So मैं I will come back to this question later, right? So अभी हम convert करना सीख लेते हैं, then we will see how why we need that and actually why we want to do that. तो इस tutorial के अंदर जो एक convention मैं use करूँगा वो ये है कि whenever I will write, for example, y prime or any variable with prime, I mean basically t बाई डी टी। सो जब जब भी प्राइम के साथ डेरिवेटिव लिखा होगा तो इट मींस मैं टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, राइट? सो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो आई वांट टू कन्वर्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2y डबल प्राइम माइनस 5y प्राइम, ओके, प्लस y is equal to 0। तो अब ये we know how to solve this differential equation, right? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि can I write this differential equation in system of coupled differential equation? इस तरह की equations मैं लिख सकता हूँ। The answer is yes। तो जितना ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, तो उतनी ही इक्वेशंस बनेगी एंड वी विल सी नाउ हाउ। तो पहला स्टेप आप ये कर लें कि इसको जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसको सेपरेट कर लें। It's not important, but it's easier if you do that like this। तो मैं बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले आता हूँ, तो इट विल बिकम 5 और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं इस टर्म से, ताकि y डबल प्राइम सेपरेट हो जाए, y प्राइम और माइनस 1/2 y। ठीक है जी। So this is our equation which we want to convert into first order differential equation। तो we will always do that, जो मैं भी करने लगा हूँ। let, हम ये कहते हैं let x1 will be, let x1 हम कहते हैं कि is equal to y। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि जहां पे भी इक्वेशन में y है उसको x1 लिख देंगे, एंड x2 जो है वो हम कहते हैं y प्राइम। तो जहां y प्राइम है वहां x2 लिख देंगे, ठीक है? तो अब जब ये कर लिया हमने, एंड इफ वी सी के हमें हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें डेरिवेटिव्स भी थे, तो आई विल टेक नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दीज टू इक्वेशंस। सो इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो आई विल हैव x1 प्राइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूँ, इज इक्वल टू y प्राइम, और नीचे वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा तो x2 प्राइम इज इक्वल टू y डबल प्राइम। रिमेंबर हमने करना क्या है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, लेट्स हाईलाइट दैट, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना है। तो उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली कि y को एक न्यू वेरिएबल x1 और y प्राइम को x2, और फिर दोनों का डेरिवेटिव ले लिया। ओके, अब क्या करें? नाउ इफ यू सी के y डबल प्राइम तो इसके इक्वल है, यहाँ पे देखें 5/2 y प्राइम माइनस हाफ y, राइट? इसके इक्वल है। तो व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार,
ओके, हमने तो इस तरह की इक्वेशन लिखनी थी। हैव वी रिटन दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन सो फॉर? अभी हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा इस पे, इन दो इक्वेशंस को जो मैंने लिखी हैं, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं एंड लेट्स मॉडिफाई these two equations. तो इफ यू सी केयरफुली, जो फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्राइम ये इक्वल हो जाएगी y प्राइम के, एंड y प्राइम यहाँ पे देखो वो x2 के इक्वल है। ओके, x2 के इक्वल है। ये वाली इक्वेशन देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ओके, तो नीचे अगर ये वाली इक्वेशन देखो तो x2 प्राइम इज इक्वल टू 5/2 y प्राइम, और y प्राइम अगर आप अपनी ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखो वो x2 के इक्वल है। x2 माइनस हाफ y, एंड अगेन गो सी योर सब्स्टिट्यूशन, ये x1 के इक्वल है। सो वी हैव सक्सीडेड विद आवर गोल कि हमने जो अपनी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको ब्रेक कर लिया है टू कपल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? ये देख लें कि x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है और x2 और x1 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, वी हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन into two coupled first order linear differential equations. Okay, now the question is ये करके हमने कौन सा तीर मार लिया, and we will see now, हम करेंगे ये कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को we will try to write in this form. So हम ये करना चाहते हैं बेसिकली, किसी तरह इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, x वेक्टर डॉट ऐसे वेक्टर is equal to matrix times vector, right? And if we do that, you remember from your linear algebra content कि ये इस तरह की इक्वेशन है ना, ax is equal to b, and we know how to solve this equation. तो इसलिए हम चाहते ये हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, we want to solve this using tools of linear algebra uh, to assist us, right? So we want to use tools of linear algebra to solve such sort of differential equations, because when we solve these differential equations on a computer, it is much easier if we convert higher order differential equation to, let's say, a set of couple differential equation. It becomes more easier basically to deal with matrices and vectors on a computer. So this is our goal, right? अब प्रैक्टिस के लिए हम ये करते हैं कि एक और एग्जांपल इसी की ले लेते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड देन आई विल राइट वन मोर एग्जांपल व्हिच यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो एग्जांपल 2 वो क्या है? वो एग्जांपल मेरे पास है y डबल प्राइम प्लस I have 2 times t. Now the coefficients are variable. Y prime is equal to 5 sine of t, non-homogeneous. So can I write this differential equation in coupled set of linear differential equation? तो पहली बात आप देखो, जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही बनेगी सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप वाइज कर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या करना है आपने? स्टेप 1 ये करना है कि वाई डबल प्राइम को सेपरेट कर लेना। तो वाई डबल प्राइम जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इज इक्वल टू -2t वाई प्राइम प्लस
5 sin t। ओके, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेफ्ट क्या सब्स्टिट्यूट करें? वेरिएबल्स कि हम न्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं x1 विच इज इक्वल टू y, और let's substitute another variable x2 which is basically y prime। और अगर थर्ड डेरिवेटिव होता तो मैं तीसरी भी x3 को y डबल प्राइम करता। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब क्या करें? y प्राइम। ओके, तो जो स्टेप 3 है वो ये है कि आपने ये जो इक्वेशंस हैं इनका डेरिवेटिव लेना है with respect to t। तो x1 प्राइम is equal to y prime, और x2 प्राइम is equal to y double prime। Okay, so we have some sort of a shape, right? और step 4 ये है कि अब आपने जो ओरिजिनल ये सब्स्टिट्यूशन की है ना उसको देखते हुए आप लिख लो अपनी इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x1 प्राइम इज इक्वल टू y प्राइम, और y प्राइम किसके इक्वल है? x2 के। और सेकंड इक्वेशन देखें जरा, x2 प्राइम इज इक्वल टू y डबल प्राइम, और y डबल प्राइम ये ये वाली टर्म है, राइट? -2t, उसके बाद y प्राइम आता है। तो मैं अपनी सब्स्टिट्यूशन देखता हूँ, y प्राइम किसके इक्वल है? x2 के। ओके, व्हाट एल्स? +5 sin t। सो आवर टास्क इज डन। हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट ऑफ कपल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लिया, राइट? ओके, now so I'm going to write an example which you can do by yourself to practice। तो वो क्या है? वो है ये है example to yourself। वो है y ट्रिपल प्राइम थर्ड ऑर्डर होगी इज इक्वल टू 3 बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? 2 y डबल प्राइम, ये माइनस के साथ है तो लेट्स राइट माइनस, और -8 y प्राइम इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो इसकी आपने लिखनी है 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर मैं बता देता हूँ आपको। x1 प्राइम, ओके, x2 प्राइम, और जो x3 प्राइम होगा वो किसके इक्वल है? 3 डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। x1 जो होगा वो x2 के इक्वल होगा, और x2 x3 के इक्वल है, और x3 बेसिकली ये सारी टर्म अगर आप उधर लेके जाके लिखो तो ये सारी ये वाली दोनों यहाँ पे जाके लिखें तो ये बन जाएगा 2x3 प्लस 8x2। तो आप जो मैंने ऊपर स्टेप्स किए हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई एम राइटिंग लाइक डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज द आंसर। कन्विंस योरसेल्फ। क्यूरीज हो तो प्लीज डू आस्क। ओके,
Now we will solve few questions. इंट्रोडक्टरी होंगे। जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जिल की बुक है, 9th एडिशन है। उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो 8.1 एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो 8.1 का प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने जो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रहे हैं, ये कपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, राइट? ओके, तो लेट्स डू दैट। इसको राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? तो हमने लिखना है ऐसे है इसको, कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर, सॉरी नॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टाइम अ वेक्टर, राइट? तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा, 2 कॉलम्स 2 रो। तो डायमेंशंस करेक्ट करने के लिए ये 2 क्रॉस 1 होना चाहिए, बिकॉज 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 1 आंसर आएगा। ओके, बट अगर ये इफ यू डोंट फॉलो लाइक दिस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप देखोगे जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो कितनी है। ओके, ये एक्स प्राइम, प्राइम मींस इन आर केस जैसे मैंने कहा वो dx/dt होगा, राइट? मैं डॉट नहीं लिख रहा। ओके, और ये वाई प्राइम। तो रिमेंबर अगेन, जब मैं प्राइम लिख रहा हूँ तो डोंट फॉरगेट, मैं मेरा मतलब ये है dx/dt। ओके, तो अब राइट साइड पे हमने इस इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने ऐसे लिखना है कि जब हम मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, राइट? तो उसके लिए बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल x एंड y, वी कैन राइट लाइक x here एंड y here। और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो जो बाकी बचेंगे कोफिशिएंट, जैसे 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर -5 आता है, फिर 4 और 8। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वाकई ये बनती है या नहीं। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से करना है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? तो पहले वाली देखते हैं। पहले वाली इक्वेशन बनेगी एक्स प्राइम इज इक्वल टू 3x, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को y से करना है, -5y। ठीक है जी। तो 3x पहले वाली आ गई, ये वाली इक्वेशन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन y प्राइम है, तो लेट्स राइट y प्राइम। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय y 8y, प्लस साइन के साथ 8y। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो इट मीन्स हमने ठीक लिख लिया। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना था आंसर वो लिख लिया हमने, राइट? सो दिस इज द आंसर। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? ये जो मैंने आंसर लिखा है इसको हम इरेज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम फर्दर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ये एक वेक्टर है, तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, जैसे x इज अ वेक्टर, तो इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल डालते हैं और साथ इसका डेरिवेटिव भी है, राइट? डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये वेक्टर मैंने ये डिफाइन किया है, एक्स प्राइम वाई प्राइम को मैंने एक्स वेक्टर कह दिया। ओके, और ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल दैट ए, और जो सेकंड वेक्टर है ये भी एक्स है, राइट? विदाउट इट्स डेरिवेटिव, तो ये एक्स है। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
इस इक्वेशन को। तो तीन फॉर्म्स देख ली हमने। सिस्टम कपल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको फिर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन जैसे एक्स एक्स वेक्टर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू मैट्रिक्स टाइम द वेक्टर इटसेल्फ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस इन दिस 8.1 में आप कर सकते हो। दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस बुक का नाम जो है अ फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। जिल की ये बुक है। अच्छा, अब क्या है? अब ये है कि हमने ओके, एक और चले मैं एग्जांपल यहाँ से कर देता हूँ कि जो जिसमें सा टीवी आ रहा हो वो लिख के देख लेते हैं। तो कौन सी कर लें एग्जांपल? लेट्स डू मे बी दिस। तो लेट्स सॉल्व दिस वेरी क्विकली, हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तीन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीन वेरिएबल होंगे। लेट्स कॉल दैट एक्स प्राइम ये, फिर वाई प्राइम ये, और फिर जी प्राइम ये, राइट। तो ये इक्वल होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 by 3 का आएगा, और सात वेरिएबल्स आएंगे, राइट। एक्स वाई जी। तो कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं? कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। 3x, रिमेंबर यहाँ पे x है, फिर y है, फिर z है। तो 3x, ये 3 आ गया, फिर 4y आ गया। z नहीं है, तो z में मैं 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो इज डन। लेकिन ये बच गया है, अभी हम देखते हैं इसका क्या करना है। सेकेंड इक्वेशन में देखें, 5x, x के नीचे 5, फिर y नहीं है, y में 0, और 9z, फिर एक टर्म बच गई है। सो लेट्स सी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी इसका क्या करना है हमने, वी विल सी। ओके, तो जो लास्ट में z है, z में देखें x नहीं है, तो x 0, फिर y भी नहीं है, 6z है, तो 6z, राइट। अगेन एक टर्म बची है हमारे पास, एंड लेट्स हाईलाइट दैट टर्म। अब इनका क्या करें? So these highlighted term we can write in an additional vector like this, e power minus 2t sin 2t, बिकॉज ये ऐड हो रही हैं इस इन इक्वेशंस में, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। और सेकंड टर्म भी आएगी 4 e पावर माइनस टी कोसाइन 2t, और लास्ट टर्म देखो माइनस e पावर माइनस टी, राइट। तो आप खुद से इसको मल्टीप्लाई करके, ये जैसे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आएगा? 3x प्लस 4y, 3 को x से, 4 को y से, 0 से z, वो नहीं आएगा, प्लस, इसमें प्लस करना है। ये टर्म कौन सी टर्म? फर्स्ट वाली, प्लस e पावर माइनस 2t साइन 2t, और लेफ्ट साइड पे एक्स प्राइम आएगा, फर्स्ट टर्म, राइट। तो यही तो इक्वेशन लिखी हुई है। सेकंड टर्म देख लें, सेकंड इक्वेशन वाई प्राइम, तो इसमें ये रो और ये कॉलम होगा। 5 को एक्स से, 5x, 0 को y से, तो y नहीं आएगा, 9 को z से, प्लस 9z, और ये टर्म इसमें ऐड हो रही है। कौन सी ऐड करनी है? अब सेकंड वाली, सेकंड रो है तो सेकंड टर्म ऐड करेंगे, प्लस 4e-t कोसाइन 2t, and you see this is the equation. So थर्ड आप खुद देख सकते हो। सो प्रैक्टिस दिस। अब इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद ये करना है, इसमें हमने ना, हमने इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिखना है। तो लेट्स राइट दैट। ये मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई इक्वेशन, तो इससे उल्टा करना है हमने, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनानी है। तो लेट्स डू दैट। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो आप वेरिएबल्स लिख सकते हो जैसे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ठीक है। तो ये मैंने ये एक्स प्राइम लिख लिया, वेक्टर इज इक्वल टू ये 4 2 -1 3
2 minus 1 3 और let's say y प्राइम को मैं ब्लू कर लेता हूँ y प्राइम ओके प्लस और डोंट फॉरगेट टू राइट उसके बाद x वेक्टर आता है बोल्ड किया हुआ है सो दिस इज अ वेक्टर इधर डेरिवेटिव के साथ वेक्टर है इधर सिंपल है तो इधर मैं सिंपल वेक्टर लिखूंगा एक्स वाई और प्लस एक टर्म ऐड हो रही है इसमें वो है 1 - 1 e power t ओके हाउ कैन आई राइट दिस इन इक्वेशन फॉर्म अभी जो ऊपर किया आपने तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्राइम इज इक्वल टू 4x 4 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को y से 2y और इसमें ये वाली ऐड हो रही है वेक्टर तो इसमें पहली टर्म ऐड करेंगे प्लस ई पावर टी सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y और दिस टाइम माइनस ई टी है राइट सो दिस इज द आंसर ये भी इतना मुश्किल नहीं था सो दिस इज इजी यू कैन प्रैक्टिस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिमिलरली आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो फर्दर हम ये क्या करेंगे वेरीफाई करना है तो लेट्स डू दैट इन क्वेश्चंस में क्या करना है सो दिस इज द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और गिवन ये है कि ये इसका सोल्यूशन है राइट एंड वी विल सी इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल हाउ टू डिराइव दिस सोल्यूशन अभी सिर्फ हमने ये करना है कि वेरीफाई सोल्यूशन हमने ये वेरीफाई करना है कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऐसे करते हैं पहले जो डिफरेंशियल जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना फर्स्ट ऑर्डर इसको अम, इस फॉर्म में लिख लेते हैं किस फॉर्म में एक्स प्राइम ए एक्स की फॉर्म में ठीक है पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक ओके तो यू नो दैट के एक्स प्राइम किसके इक्वल होगा एक्स स्मॉल एक्स प्राइम वाई प्राइम ये टर्म और ये टर्म और ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा 3 - 4 कोफिशिएंट्स 4 - 7 ये सारे कोफिशिएंट लिस्ट कर लिए और जो एक्स वेक्टर है वेक्टर के लिए चले मैं सिंबल लगा लेता हूँ वो है एक्स वाई ठीक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके अब क्या करें अब वेरीफाई करना है कि ये जो एक्स वेक्टर गिवन है ये वाला ये सोल्यूशन है इसका तो वेरीफाई ऐसे हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली ये लिखा हुआ है डी बाई जी टी जो एक्स वेक्टर है उसका डेरिवेटिव लेना है ठीक है टी बाई डी टी एक्स वेक्टर क्या है हमारे पास ये सोल्यूशन वेक्टर इसका डेरिवेटिव विच इज तो सोल्यूशन वेक्टर को लेट्स सपोज मैं ओके इसे पिंक से हाईलाइट कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव लेना है तो लेते हैं डेरिवेटिव 1 - e⁻⁻5t ठीक है इसको इधर लिख लेते हैं ओके सो वी वर टेकिंग द डेरिवेटिव हमने सोल्यूशन को लेफ्ट हैंड इक्वेशन में पुट किया है और अब डेरिवेटिव लेना है ये तो कांस्टेंट है राइट 1 और 2 इट विल गो आउट ऑफ द डेरिवेटिव और e⁻⁻5t का डेरिवेटिव क्या होगा -5
ई पावर -5t, राइट। अब 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर करना चाहो, तो -5 10 ई पावर -5t। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड विच इज a टाइम्स x, राइट। तो a क्या है, a ये लिखा हुआ है 3 - 4 4 -7, और साथ x वेक्टर आ रहा है, x वेक्टर है xy। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं। 3x। अच्छा, अब जो मुझे करना था एक्चुअली, सोल्यूशन पुट करके वेरीफाई करना है ना, तो ये सोल्यूशन पुट करना था, ठीक है, एक्स की जगह इसकी जगह। क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पे भी ये सोल्यूशन पुट किया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इस सोल्यूशन को मुझे राइट साइड पे पुट करना है, तो 1 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -5t, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -5t तो मैं आउटसाइड ले जाता हूँ। अब मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम्स 1 3, और -4 टाइम्स 2 -8, 4 टाइम्स 1 4, -7 2 -14। ओके, तो e पावर -5t इधर लिख लेते हैं। अब ऐड कर लें इन टर्म्स को, तो ऊपर -5 आएगा, माइनस में बाहर लिख देता हूँ। -5 नीचे -10 आएगा, तो माइनस बाहर लिखा हुआ है। तो ये आंसर है। एंड इफ यू सी लेफ्ट हैंड साइड agrees with right hand side, what it means कि ये जो solution था, ये it is the solution to the system of differential equation। तो हमने वेरीफाई कर लिया है अब ये। तो समरी ये है कि जो solution given था हमने, जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखा x प्राइम ए एक्स, और उसमें फिर दो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी पुट करके देख लिया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो वेरीफाई हो गया सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं। इसी तरह बाकी आप प्रॉब्लम भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, ओके नाउ ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में करना ये है कि आपने ये बताना है, इज इट अ फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट, फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट। सो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, x1 x2। इट मीन कि हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, दो सॉल्यूशंस आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि आर दी सॉल्यूशन फॉर्म अ फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट। तो फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट का मतलब ये है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर, दो वेक्टर्स को हम लीनियर उनकी लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं, अगर आपको याद हो, तो उसका मेथड ये था कि हम इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट, वेक्टर x1 का। सो दिस इज वेक्टर x1, और फिर वेक्टर यहाँ पे x2 आएगा, ये वेक्टर x2, और इसका फिर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तीन होते तो मैं लिखता x1 x2 x3, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को रॉन्स्कियन भी कहा जाता है, तो रॉन्स्कियन ऑफ x1 वेक्टर, ऐसे भी लिखते हैं x2 वेक्टर, राइट। तो अब हम पुट करते हैं इसमें x1 और x2। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आए, राइट, इफ जीरो, इफ रॉन्स्कियन इज इक्वल टू जीरो, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा। अगर जीरो आएगा तो फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट नहीं है,
और अगर नॉन जीरो आएगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इट मींस फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट है। तो नॉन जीरो आना चाहिए तभी ये फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट बनेगा। फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, हमने चेक करनी है लीनियर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ये चेक करनी है हमने। ओके, तो x1 वेक्टर यहाँ पे लिखते हैं, वो होगा e एक्सपोनेंशियल को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के साथ ऊपर e⁻²t और नीचे भी e⁻²t। ओके, इधर भी एक्सपोनेंशियल को आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e⁻−60 और -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e⁻−60। अब हम डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट 2/2, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज बेस सेम है, ठीक है, माइनस साइन तो आएगा आएगा। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, तो विच विल मेक -8t, राइट। ओके, फिर क्या करना है, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हुए माइनस साइन आएगा। वंस अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो -8t। ये भी माइनस एक्सपोनेंशियल है, ये भी माइनस है, तो यू कैन टेक ये 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि e⁻−8t कॉमन ले लें, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, तो -1 becomes -2 e⁻−8t। सो दिस इज द आंसर विच इज नॉट जीरो, राइट। ये जीरो के इक्वल नहीं आया आंसर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x1 और x2 है ये फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट है। अगर जीरो आंसर आता तो ये फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट नहीं होता। ओके, सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस, लेकिन जैसे मैं आपको एक और इस फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट का बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि इसका भी आप रॉन्स्कियन कैलकुलेट करोगे, राइट। सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रॉन्स्कियन? फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट के लिए हम कहेंगे Wronskian of x1 वेक्टर x2 वेक्टर। कैलकुलेट क्या करना है, x1 और ये x2, राइट। तो इसमें x1 क्या आएगा, x1 आएगा e⁻t और -e⁻t, और x2 इनको ऐड करके लिख लें, राइट। तो आप ऐड करके लिखो तो आएगा 2e⁻t प्लस 8t e⁻t, राइट। या आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2e⁻t कॉमन ले लें तो 1 + 4t ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2e⁻t कॉमन ले लेते हैं, 1 + 4t। ओके, रिमेंबर इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सिमिलरली नीचे भी अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो ये वाली टर्म, अगर नीचे वाली लिखना चाहो ये वाली टर्म, दिस विल बी 6et -8t राइट। 6 टाइम्स et और -8 टाइम्स tet। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो et, वंस अगेन 3 बचेगा और -40, तो 2et 3 - 40। अब इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लो, यू नो हाउ टू डू दैट। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई कैन टेल यू द आंसर,
और इसका आंसर ये है जो आप यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ। इसका जो e पावर -2 दिया था आंसर। You can verify by yourself ये आंसर ठीक है या नहीं। So with this we've end this tutorial. Hopefully you will be able to solve these questions now. For example, इसके बाद ये है, अगर आप you can read this, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड वो वेरीफाई करना है। तो इसमें भी वेरिफिकेशन का वही मेथड है कि आप पर्टिकुलर सोल्यूशन पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस। होप सो दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू। अगर वो क्वेश्चन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके।